FM 101.9. Right here, we RGs and we as a team at All India Radio try our best to raise awareness and bring forward or connect with people who are really doing a great work, who are creating awareness about a lot of noble causes. And let me tell you, according to 2004 World Health Organization report, there are 31 million people with intellectual and developmental disabilities in India itself. And all they need is love, care, and faith, and all they want us to see is beyond their disabilities. And one woman who came forward, indeed, and took up this challenge. We're going to connect with her. Her name is Prachi Deo, and she's the founder of an NGO, Nai Disha, which was founded in 2015 and right now is associated with 3,500 families across the country, working as a platform to provide essential information to families of children with intellectual disabilities, intellectual and development disabilities. And we will know more about these services right from her itself, and we will welcome her to this show after this beautiful track right here. The song is indeed beautiful. This is Heal the World by Michael Jackson, and what can I say about this track? You keep listening to this one and feel the song, and meanwhile I will connect with Prachi and we will be right back. Stay tuned. This is All India Radio Rainbow FM 101.9 and I'm Jayashree. FM 101.9. Let me quote the father of the nation. Be the change you want to see in the world, he said. And yes, so many of us get inspired, but there are just few of us who take action indeed. And there's this one woman that we're going to connect with right now. Her name is Prachi Deo, and she thought about one cause. And that cause has received several prestigious awards, including the International Zero Project Award among 470 applications, and was recognized at top 10 projects that should replicate across the world. What is that one cause? That one cause is to provide essential information to the families of children with intellectual and developmental disabilities. And she is on air with us right now to talk to us. Hello, Prachi. Hi, Jayashree. Thank you for having me. Thank you for joining with us. How are you today? I'm doing good. I hope you are too. Yes, I am, and it is indeed very, very awakening to read everything about your team and your NGO and about all the things that your team has been doing and you have been doing. And talking about children with special needs, we all focus on children's nurturing and development, but your objective is to extend help to the families and caregivers. What motivated you to take this up? So, Jayashree, when I talk about this, I think it's important that we recognize what intellectual and developmental disabilities are. So these are conditions like Down syndrome, autism, and cerebral palsy. I suppose many of your viewers would have heard about this. Yes. Of course, there is a need for children to get right therapies at the right time, but it is also important to recognize that in most cases, they might not be self-advocates and require lifelong care. Yes. And this is where the role of parents becomes very, very important. And while there is a dearth of intervention services, there is not enough support for parents, and this is where I thought we could bridge the gap by providing this information. Right. My elder brother has Down syndrome, who is the inspiration behind setting up this organization, and 47 years back there wasn't enough information, and there was lack of social media, lack of internet, lack of a lot of information. Right. Exactly. That's right. So my parents did the best they could. But when I was volunteering at different centers about 10 years back, 7 years back, I felt that in this age of internet, in this age of information, when parents are struggling with information, there is something that definitely needs to be done. And that was where the genesis of our organization lies. So in 2015, you started this, but I'm just assuming that you got this thought कि कुछ करना है, कुछ ऐसे स्थापित करना है. ये thought आपको पहले भी आया होगा, right, before long ago. And
what are the challenges you overcame to initiate this platform? इनिशियल चैलेंज तो यही था कि कहाँ से शुरू करें, फंडिंग चैलेंज था, बट उसके लिए मैं खुद आई माई सेल्फ कम फ्रॉम टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, तो प्लेटफॉर्म बनाते वक्त तो मैंने खुद ने इन हाउस हमारा प्लेटफॉर्म बनाया था. बहुत सारे वॉलंटियर्स, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्टेड अस, डूइंग सर्वेज, हेल्पिंग इन वॉलंटियरिंग इन एनी विच वे दे कुड. Those were the things. पेरेंट्स एंड डॉक्टर्स एंड थेरेपिस्ट एंड स्कूल जिनको हमने इस इनिशिएटिव के बारे में बताया, तो दे वर वेरी वेरी वेलकमिंग. दे टोल्ड अस कॉन्स्टेंटली कि इस इनिशिएटिव की बहुत जरूरत है, हमें एज पेरेंट्स हमें सपोर्ट की जरूरत है, हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है. डॉक्टर्स ने कहा कि हम स्ट्रगल करते हैं काउंसिल करने के लिए, तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी तो हमारा काम और आसान हो जाएगा. So while this was the case, it was very difficult to convince people at large about why this initiative is important and why the support for families of children with intellectual and developmental disabilities is so crucial. Indeed, and I was reading through that you provide a lot of services in different ways, but the 3 ways that you provide services to the families and caregivers, and they can reach out to you. So you want to talk about that? Sure. So our organization has a website that people can access to find information, and I will list out now what is the support that they can find. Right. So one is, and all this is all these services are created to provide holistic support to the families. Right. So first and foremost, we have evidence-based information on the platform. It is a rich knowledge library that families or anyone who is associated with intellectual and developmental disabilities can access. Starting information starts with child development milestone, goes on to how families can get a disability certificate, how they can work with their child at home and provide home-based information. So there's a certificate as well, is it? Yes, for disabilities there is a certificate needed to access all the government schemes and benefits. Okay. So that becomes one of the crucial things that families need to do. Right. So this is the kind of information that is available to families in English and in Hindi, and we are also making it available in Telugu now. And parents can find this information as in the form of audios and videos. So that will be accessible to many people around. Exactly. So they can, And the second service is that we have created a national directory of all kinds of services that families look for. You might need to reach out to developmental pediatricians. Developmental pediatricians बहुत important role play करते हैं diagnosis के वक्त. Psychologists बहुत important role play करते हैं. न्यूरोलॉजिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं रोल. तो हमने ये इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है ताकि पेरेंट्स अपने शहर में कौन से अच्छे डॉक्टर्स हैं, कौन सी अच्छी संस्थाएं हैं, वो ढूंढ सके. तो ये एक डायरेक्टरी है स्पेशल नीड्स के लिए, जहाँ पेरेंट्स को जो जरूरतें हैं वो ढूंढ सकते हैं. और हमने सारे प्रोवाइडर्स को वेरीफाई करके ही डायरेक्टरी पे डाला है. और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे 16 सपोर्ट ग्रुप्स हैं. एज के अनुसार, कंडीशन के अनुसार. तो हमारा डाउन सिंड्रोम ग्रुप है, ऑटिज्म ग्रुप है, बॉम्बे का ग्रुप है, झारखंड का ग्रुप है. तो अलग अलग सपोर्ट ग्रुप्स है. तेलुगु स्पीकिंग सपोर्ट ग्रुप है, जहाँ पे पेरेंट्स बाकी पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस से भी सीख सकते हैं और एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं और इंस्पायर हो सकते हैं. और कुछ सही कर रहे हैं या नहीं, वो भी शेयरिंग से ही पता चलता है कि what next can be done, what better can be done for the child's welfare. Exactly. और सबसे पहले ये पता चलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ या मैं अकेली नहीं हूँ. मेरे साथ और भी पेरेंट्स हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे भी रोज कोशिश करनी है. और ये सारी सर्विसेज के अलावा हमारी हेल्पलाइन भी है, जहाँ पे पेरेंट्स फोन करके उनके सवाल, उनके कोई डाउट्स हो वो पूछ सकते हैं और काउंसलिंग मिल सकता है उन्हें और सही मायने में गाइडेंस मिल सकता है कि आगे क्या होंगे.
बिल्कुल प्राची जी, और आप कहती हैं कि राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम, इसके बारे में हम और भी जानेंगे और भी बहुत सारे सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी फॉर आवर लिसनर्स एज वेल, लेकिन एक छोटा सा गाना हो जाए। और ये गाना भी इट्स वेरी मच टचिंग एंड रिलेटेड टू द कॉज दैट वी टॉकिंग अबाउट। जब ये फिल्म रिलीज हुआ था तो I mean, this movie and then the song is very much awakening. I'm talking about Tare Zameen Par. I think you can relate with that as well. And I'm going to play this wonderful song for our listeners and for us, and then we'll be right back within a few minutes. Listeners, please stay tuned. Prachi Rio is with us right here, and she has a lot to share about the essential information that the team is providing to families of children with intellectual disabilities and helping them in so many ways in connecting a support system for them. So stay tuned. पर से एक ऐसा गाना आपने सुना कि मतलब हमें सोचने में मजबूर कर देता है ना। ये फिल्म ही कुछ ऐसा था जहाँ 8 साल का बच्चा जो डिसलेक्सिक चाइल्ड था और पेरेंट्स को नहीं पता था, लेकिन उसके आर्ट टीचर ने ही फाउंड इट आउट। तो कुछ नहीं काम करने में ना बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। लॉट ऑफ challenges that are faced, and right now today we have Prachi Dio with us, who's a founder of an NGO and of a platform, and which actually connects and helps parents and families to find out more, to understand more about the intellectual and developmental disabilities of children indeed. So Prachi ji, welcome back again. And I just wanted to know what are the challenges faced by the families and caregivers. कैसी कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं उनको? कठिनाइयाँ जैसे आपने अब भी कहा कि तारे जमीन पर की पेरेंट्स को ये पता नहीं था कि वो बच्चे को डिसलेक्सिया है जी। और उन्हें लगता था ये बस पढ़ाई नहीं कर रहा। तो इस तरह का चैलेंज, स्टार्टिंग का चैलेंज तो हर पेरेंट के लिए यही होता है कि ये पता चलना कि मेरे बच्चे का डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं हो रहा है, और अभी मुझे पहले पता करना होगा कि बात क्या है। ये रेड फ्लैग, अगर मेरा बच्चा आंखें नहीं मिला रहा, बात नहीं कर रहा, तो बराबर डॉक्टर्स के पास राइट टाइम पे पहुंचकर डायग्नोसिस मिलना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जब डायग्नोसिस मिल जाता है उसके बाद ही पेरेंट्स के लिए ये सिचुएशन एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आप समझ सकती हैं कि पेरेंट्स, माता पिता बहुत सारे सपने लेकर अपने बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं, और उसके बाद अगर पता चलता है कि बच्चे में अब कुछ कमी है तो उन्हें वो बहुत मुश्किल जाता है। जी, एक्सेप्टेंस जो पार्ट है कि एक्सेप्ट करना, फिर बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, ओवरथिंकिंग भी हो जाती है, फैमिली ओवरथिंकिंग हो जाती है। काफी बार पेरेंट्स खुद गिल्ट महसूस करते हैं। काफी जगहों पर माँ को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है। जी। तो ये सबसे मुश्किल दौर होता है, और तब बराबर इंफॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी होता है जैसी, क्योंकि तभी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट ये होता है कि ये देखे कि इसको क्योर कैसे किया जाए। जी। अब ना तो डाउन सिंड्रोम, ना तो ऑटिज्म ऐसी कंडीशंस है जिनके लिए क्योर है। उसके लिए ये करना है कि पेरेंट्स रेगुलर थेरेपी कराए, बच्चे को हर चीज में इन्वॉल्व करे और उसका डेवलप करे। जी। उसी तरह उनका अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो ये शुरू के चैलेंजेस होते हैं। अभी भी कहीं बच्चे खो भी जाते हैं, ऐसा भी एक चैलेंज होता है। और इसमें मैं आपके श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि अभी भी हमारे पेरेंट्स कम्युनिटी में एक फैमिली है जिनका एक 17 साल का बेटा है, तरुण गुप्ता, जो खोया हुआ है, और मुंबई की सारी पेरेंट कम्युनिटीज उनके लिए ढूंढ रही है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है। 460 डेज हो चुके हैं जब से वो लापता है, और उनके लिए सर्च जारी है। तो अगर किसी को भी पता चले उनके बारे में तो जरूर हम तक पहुंचे। बिल्कुल, हमने भी देखा है वो इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस भी बहुत सारे जगहों में फैलाया जा रहा है, नॉट ओनली इन द प्लेस ही वेंट मिसिंग। सो इंडीड वी जस्ट होप एंड आवर प्रेयर्स गो विद द पेरेंट्स एंड होप दे फाइंड हिम वेरी सून। तो ऐसे चैलेंजेस के साथ साथ जब काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है, जैसे आपने बताया, सो हाउ ओपन आर फैमिलीज फॉर काउंसलिंग? आर ओनली पेरेंट्स ओपन, या सारी फैमिली भी
तैयार हो जाती है कि चलो ये और पढ़ते हैं इसके बारे में और समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है अपने चाइल्ड में। तो ऐसा कभी होता है कि प्रोएक्टिवनेस टुवर्ड्स लर्निंग फ्रॉम द एंटायर फैमिली? जी, हर तरह के पेरेंट्स होते हैं जो इमीडिएटली कहते हैं कि अभी मुझे इसके बारे में जानना है, मुझे ये समझना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। और ऐसे पेरेंट्स भी हमसे जुड़े हुए हैं जो इमीडिएटली ट्रेनिंग चाहते थे कि वो अपने बच्चे के साथ कैसे उन्हें बेस्ट होम बेस्ड इंटरवेंशन भी दे पाए। और ये भी होता है कभी कभी कि पेरेंट्स को टाइम लगता है। मुश्किल पेरेंट्स के लिए ये जाती है कि सपोर्ट सिस्टम जो अपने एक्सटेंडेड फैमिली होती है उनसे सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे टाइम पे। बट जब हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं जयश्री, ओवरऑल हमारे सिस्टम में इमीडिएटली आफ्टर डायग्नोसिस का काउंसलिंग का कल्चर इतना आया नहीं है और वो आना बहुत बहुत जरूरी है। सो अभी आप कहते हैं कि टाइम लगेगा उसके लिए। वो ही हमारी कोशिश है कि पेरेंट्स को इमीडिएट जो काउंसलिंग मिलना चाहिए वो बहुत जरूरी है और हमारी कोशिश यही है कि उनको मिल सके। बट वो कल्चर और आने की जरूरत है। और अगर कोई डॉक्टर थेरेपिस्ट ये सुन रहे हो तो मैं सबसे दरख्वास्त करूंगी कि इनिशियल काउंसलिंग पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और उससे ज्यादा पेरेंट्स को किस चीज से ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है जब कोई और पेरेंट अपनी जर्नी उनको बताता है, जब कहता है कि मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ या गुजर चुका हूँ, बट आप ये ओवरकम कर पाओगे, आप अपने बच्चे के साथ काम कीजिए, आप पॉजिटिव रिजल्ट देखोगे। टाइम लगेगा लेकिन आप जरूर मीटअप्स होते हैं क्या प्राची जी? डू यू हैव मीटअप्स ऑफ द पेरेंट्स एंड ऐसा कुछ होता है? मतलब अभी तो कोविड का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पहले होता था मीटअप्स होते थे? जी हाँ, हमारे मीटअप जरूर होते थे। पेरेंट सपोर्ट ग्रुप मीट्स होते थे अलग अलग जगहों पे जो हमारे पेरेंट चैंपियंस ही इनिशिएट किया करते थे। कोविड के टाइम पे ये सारे मीटअप्स जूम द्वारा होने लगे और एक्चुअली आज ही नागपुर का जो हमारा सपोर्ट ग्रुप है डाउन सिंड्रोम का, उनका मीटअप हुआ था। वो ओपन पार्क में डिस्टेंस रख के वो सब मिले। अभी मैं पूछना चाहती थी कि वंडरफुल, अभी मैं पूछना चाहती थी कि ये कोविड के टाइम पे मीटअप्स नहीं हो पाए और घर पर ही रहना पड़ा एंड ये और जो लर्निंग जो है क्या वो कम हो गई थी या आपकी लर्निंग जारी थी, आपका सर्विसेज जारी थे? तो टेल अस मोर अबाउट द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड ड्यूरिंग द पैंडेमिक। Okay, so first I will speak about the challenges that families have faced and then share how we have been working towards it. Yes. So yes, जैसे कि बाकी सारे स्कूल्स भी बंद हुए हैं तो थेरेपी सेंटर्स भी बंद रहे हैं, तो पेरेंट्स को वो सर्विसेज मिलना मुश्किल गया है उनके बच्चों के लिए। इसका मतलब ये भी हुआ है कि पेरेंट्स को रिस्पाइट मिलना मुश्किल हुआ है। बट हमारे जो पेरेंट्स हैं दे हैव एन इनेट रेजिलियंस इन देम, तो उसके इसलिए वो एक दूसरे का मशवरा लेके घर में जो बेस्ट कर सके कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल पेरेंट्स के लिए हुई है, पेरेंट्स जिनके बच्चों को फिजिकल डिसेबिलिटी भी है, तो फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाना सबसे ज्यादा मुश्किल गया है पेरेंट्स के लिए। तो हमारे लिए बिकॉज हम पहले से यही कहते आए हैं कि हमें टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और हमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व रखना चाहिए थेरेपीज में। पेरेंट्स शुड बी एट द सेंटर ऑफ एनी इंटरवेंशन दैट इज गिवन टू द चाइल्ड। तो ये जो हम कहते थे उसका महत्व इन अ वे इट हैज बीन रीएनफोर्स्ड राइट नाउ विद कोविड। तो बिकॉज वी वर ऑलरेडी यूजिंग टेक्नोलॉजी वी कुड एक्ट क्विकली। फिर हमने पेरेंट्स के लिए बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड की उस टाइम पे, उनको हेल्पलाइन नंबर दिलाना उनके शहर के लिए, कोविड रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हमारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल हो वो बताना। पेरेंट्स खुद स्ट्रेस्ड आउट थे और हमें पता है कि कोविड के टाइम मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा चैलेंज रहा है अक्रॉस द ग्लोब। तो वो केयर गिवर्स खुद की देखभाल कैसे करें वो इंफॉर्मेशन हमने पेरेंट्स को प्रोवाइड की और अलग अलग वेबिनार अलग अलग एक्सपर्ट्स को लेके आए पेरेंट्स के पास ताकि वो अपने सवाल उनसे पूछ सके। सवाल फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम थेरेपी टू द थिंग्स लाइक डाइट, न्यूट्रिशन, इसके बारे में भी होती हैं? जी हाँ, उस तरह के भी सवाल होते हैं। डाइट, न्यूट्रिशन, मैं अपने बच्चे की स्पीच कैसे बढ़ा
बढ़ाऊं, मैं अपने बच्चे का बिहेवियर कैसे चेंज करूं ताकि वो और इन्वॉल्व हो। इस तरह के अलग अलग सवाल आते हैं। कभी कभी पेरेंट्स ये कह के आते हैं कि हमारे पास कौन सा थेरेपी सेंटर है, कौन सी स्कूल है जी। तो इस तरह के सवाल आते हैं हमारे पास। तो अभी प्राची जी आपका जो प्लेटफॉर्म है वो 3,500, और जैसे मैं बात कर रही हूँ और भी ज्यादा फैमिलीज के साथ जुड़ रहा है अक्रॉस द कंट्री। एंड मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आगे और क्या एम्स है आपके, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, और क्या करना चाहता है आपका एंटायर टीम? वॉलंटियर्स भी ज्वाइन हो रहे हैं आपके साथ, और व्हाट इज द एम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन गोइंग फॉरवर्ड एंड योर एम? जी हाँ, आज के दिन को हमारी पेरेंट कम्युनिटी जो है वो 8,000 लोगों की है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग वेबसाइट पर आकर इंफॉर्मेशन ले चुके हैं। हम आगे जाकर यही चाहते हैं कि हमने जो इंफॉर्मेशन तैयार की है, जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी पेरेंट्स तक पहुंच सकती है, उसके ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज उसका लाभ उठाएं, अपने खुद को सक्षम करें, अपने बच्चे को बेस्ट थेरेपी, बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। और हम चाहते हैं कि ये नेशनल प्लेटफॉर्म बन जाए जहां हर शहर से, हर छोटे गांव से भी पेरेंट को इंफॉर्मेशन मिल सके अपने बच्चे के साथ काम करने के लिए। यानी रूरल एरियाज पर भी आपकी पहुंच है, ये आप कह रही थी, और यू वांट टू हेल्प ऑल द फैमिलीज विदाउट एनी बैरियर्स। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हर जगह इंटरनेट की पहुंच होगी, स्मार्टफोन की पहुंच होगी, उसी तरह पेरेंट्स को ये सारी इंफॉर्मेशन भी पहुंच सकती है। हम अलग अलग शहरों के, छोटे शहरों के और गाँव के ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ रहे हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो हम बिलीव करते हैं कि सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके जब काम करेंंगे तब पेरेंट्स और बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल प्राची, और ये इंफॉर्मेशन हम अलग अलग लैंग्वेजेस में भी पहुंचा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में तो है ही, बट हम चाहेंगे कि अपने देश की जो विभिन्न भाषाएं हैं जी, हर भाषा में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तमाम लिसनर्स को ये बता दें कि ये सारा इन्फॉर्मेशन आप जो चाहते हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है, और प्राची डियो जी बिल्कुल बहुत ही इनका प्रयास है कि सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे फैमिलीज तक पहुंचे who are in need of the information indeed. And Prachi, it's been indeed a privilege to connect with you today, and we're indeed happy that a lot of our listeners are listening, and an awareness is created about your noble cause. And आप कुछ कहना चाहती हैं हमारे listeners से about your cause and about what you want to say? जी हाँ, तो सबसे पहले तो अगर कोई फैमिलीज है जो ये सुन रही है, मैं उनको बताना चाहूंगी कि आप खुद को अकेला ना महसूस करें। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो आपके साथ है। आप इंफॉर्मेशन गूगल करें, आप इंफॉर्मेशन ढूंढे इंटरनेट पे, हमसे जुड़े। आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मिल सकती है। और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंफॉर्मेशन देंगी, तो सही इंफॉर्मेशन आपको वक्त पे मिले तो आप अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। सोसाइटी, बाकी जो आपके लिसनर्स है, सारे लिसनर्स के लिए मेरी एक दरख्वास्त है। हेलो प्राची जी, आई थिंक you've been disconnected. हेलो, कोई बात नहीं, तो शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन आई जस्ट वांट टू से दैट प्राची जी यही दरख्वास्त करना चाहती थी कि right information is indeed important at the right time for you to reach out, and we thank you a lot प्राची जी। आप अगर सुन रही हैं रेडियो राइट नाउ, क्योंकि लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है, और एक बार बिल्कुल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एंड अवेयरनेस इज द की लिसनर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी को जानते हैं जिनके बच्चे हैं विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, प्लीज उनको बताइएगा कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उनके वो अकेले नहीं है, और उनके साथ बहुत सारे फैमिलीज जो जुड़ना चाहते हैं और भी डिस्कस करने के लिए और भी सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए। इंडीड, थैंक यू सो मच प्राची, एंड वी विल मूव ऑन विद द शो। स्टे ट्यून्ड, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो रेनबो FM 101.9. There's a beautiful track coming up right next. This is by Celine Dion, A New Day Has Come.